तो अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, इन नेशनल सिक्योरिटी, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, दे एक्ट एज द आईज एंड ईयर्स एट द ग्रास रूट लेवल्स। क्योंकि देखो, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स दे एक्ट एज द आई एंड द ईयर। सो local intelligence networks, they can keep an eye on the local community to extract the granular data, grassroots level data, to extract the community specific insights like unusual gatherings, new faces, local rumors, and changed behaviors। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि कोई भी अगर टेरर एक्टिविटी होती है या कोई भी घटना होती है, वो तो होगी तो ग्रास रूट लेवल पे ही। So local intelligence networks, they act as the eyes and the ears at the grassroots level, wherein they are extracting the granular data from the local community at the grassroots level. They are like local intelligence network. It is extracting the community specific insights like the unusual gatherings, the new faces seen, the local rumors, the changed behaviors. Local intelligence networks, and ये data and the insights they provided to the central agencies, because this kind of हम उसको कहते हैं इंटेल्स। तो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स वो लोकल लेवल पे इंटेल्स गैदर कर करके सेंट्रल एजेंसीज को देते हैं। सो दिस इज लाइक अ सेंट्रल एजेंसी, एंड सेंट्रल एजेंसीज दे लैक ग्रैनुलर कम्युनिटी लेवल कॉन्टेक्स्ट। सो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क इज फिलिंग दैट गैप, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी के पास ग्रास रूट लेवल की के इंटेल्स नहीं होते हैं, तो ग्रास रूट लेवल के इंटेल्स is provided by the local intelligence networks. So it fills the data gap. Local intelligence networks, it fills the data gap. अगर हम विदाउट लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, अगर कोई थ्रेट लोकल लेवल पे हमको देखने को मिलता है, तो वो बहुत इजीली बाईपास हो जाएगा, क्योंकि कोई उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। एंड लोकल लेवल पे टेरर एक्टिविटीज बढ़ेगी एंड नेशनल क्राइसिस एक्सकलेट कर जाएगा, लेट डिटेक्शन। बट विथ लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स वी आर एबल टू डू द अर्ली डिटेक्शन, वेरिन अगर कोई थ्रेट दिखा भी तो वो इंटेल कम्युनिकेट कर दिया जाएगा टू दी सेंट्रल एजेंसीज, अलर्ट कर दिया जाएगा, इंटरवेंशन विल बी देयर। सो अगर कोई थ्रेट है तो दैट विल बी आइडेंटिफाइड, अलर्टेड, intervened, and we can prevent the crisis. So early identification is something which we can achieve via local intelligence networks. So spotting threats like the radicalization, sleeper cells before even escalation. And it is essential for crisis prevention. So local intelligence networks, it act as the primary sensor network. So core functions of local intelligence. अगर हम लोकल इंटेलिजेंस के कोर फंक्शंस की बात करें in the context of role of local intelligence networks in national security, if we talk about the core functions of local intelligence, तो पहला फंक्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसको कहते हैं ह्यूम इंट, HUMNIT, दैट इज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो लोकल networks, it excel at gathering information directly from the people. So gathering information directly from the people like informants, community leaders, residents, local residents, and this is critical। क्योंकि भाई अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर डायरेक्टली पीपल से गैदर करोगे तो आपको बहुत पुख्ता जानकारी मिलेगी, एकदम ग्रास रूट लेवल की जानकारी मिलेगी। उसी को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वाइब or shifting loyalties in sensitive areas. So core functions of local intelligence is the human intelligence, wherein the intels are gathered from the people itself, like the informants, community leaders, residents, and it's very important.
दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑफ लोकल इंटेलिजेंस, दैट इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। So local intelligence networks, it detect subtle changes in local patterns. Subtle changes in local patterns, like sudden arrival of outsiders, unusual financial transactions, spread of extremist propaganda. उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो बेसिकली लोकल इंटेलिजेंस की मदद से सब्टल चेंजेस इन द लोकल पैटर्न्स कैन बी डिटेक्टेड, जहाँ पे कि कोई अचानक से कुछ आउटसाइडर्स आ गए किसी कम्युनिटी में। भाई वो टेररिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो हिंसा फैला सकते हैं। अनयूजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट प्रोपागेंडा। सो इफ वी टॉक अबाउट कोर फंक्शंस ऑफ लोकल इंटेलिजेंस, tactical support is also a very important core function of local intelligence. So in operations against insurgents or terrorists, local intelligence, it provides precise last mile data such as building layouts, escape routes, which is needed for successful field actions. तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क वो ग्रास रूट लेवल पे ऑपरेट करती है। तो यूजिंग इट वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, दैट इज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। We can detect subtle changes in the local patterns, that is early warning systems, and also local intelligence can provide tactical support wherein it can provide the precise last mile data to carry out successful field actions by the central agencies. So, so that's the core functions of local intelligence and how the local intelligence is playing a role in national security. तो अगर हम लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की बात करें, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन। लाइक भारत में लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का क्या स्ट्रक्चर है एंड हाउ दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एजेंसीज। सो एट द ग्रास रूट लेवल वी हैव द कम्युनिटीज एंड द लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स दे ऑपरेट इन द कम्युनिटी एंड लोकल लेवल, सो दैट वी कॉल इट द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी एंड लोकल पॉपुलेशन है, एंड दैट इज वेयर द लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इट ऑपरेट्स। सो वी हैव district and police station units. So every district and major police station has a dedicated local intelligence units, जिसका काम है to monitor local laws, local law and order, to monitor political movements and to monitor communal tensions। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में एंड मेजर पुलिस स्टेशन में, लाइक उस डिस्ट्रिक्ट के जो मेजर पुलिस स्टेशन है वहां पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आपको देखने को मिलेगा, जिसका काम है टू मॉनिटर लोकल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, टू मॉनिटर द पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड टू मॉनिटर द कम्युनल टेंशंस। वी ऑल्सो हैव सिटीजन नेटवर्क्स। तो अगर हम लोकल इंटेलिजेंस की बात करें तो वी ऑल्सो हैव सिटीजन नेटवर्क्स वेर इन लोकल population, they are provided platforms. So we have platforms for responsible citizens who can share info. Like अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एनसीआईबी, it provides platform for responsible citizens to share classified information about anti-national activities at the grassroots levels. So this is something very interesting. तो अगर हम लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की बात करें तो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेजर पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद है। सिटीजन्स के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के लिए। एक एग्जांपल है नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी एक प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जहाँ पे कि आम आदमी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है अबाउट एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी एट द ग्रास रूट लेवल। एंड वी ऑल्सो हैव स्टेट लेवल हब्स like the subsidiary multi-agency centers.
सो अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में वी हैव subsidiary multi-agency centers where local police, state intelligence, and central agencies like the intelligence bureau they share real-time data. तो सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर ये एक स्टेट लेवल हब है। तो उस स्टेट के अंदर जितने भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो अपना डेटा रियल टाइम डेटा उस स्टेट लेवल हब के साथ शेयर कर सकते हैं। तो एंड स्टेट इंटेलिजेंस हो गया, लोकल इंटेलिजेंस हो गया और सेंट्रल एजेंसीज दे कैन वर्क ऑन दैट रियल टाइम डेटा टू टेक एक्शंस। सो दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर एंड द कोऑर्डिनेशन। तो कुल मिला के ये सब लोग मेनली कम्युनिकेट करेंगे नेशनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये एक तरीके की आपको हायरार्की दिख रही है। तो इस हायरार्की में या इस स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन में लोकल इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो डेटा है वो तो हमको लोकल इंटेलिजेंस से ही मिलेगा। तो हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद है इन द मेजर पुलिस स्टेशंस एंड ऑल्सो सिटीजन नेटवर्क्स मौजूद है, प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे कि सिटीजन्स भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अबाउट सम एंटी नेशनल एक्टिविटीज। And state level also, in the state level also we have subsidiary multi-agency centers, and all of this ultimately are connected with the central government agencies like the intelligence bureau. And in this way, with this structure in place, we are bridging the gap and the feedback loop. So if we talk about the strategic importance of local intelligence networks, so the first strategic importance is the counter insurgency. So in regions like Jammu and Kashmir or areas affected by left wing extremism, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या एरियाज अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग extremism, local intelligence is the primary tool for winning hearts and minds and identifying insurgent hideouts. Predictive policing. So by analyzing local crime patterns and social media trends, local intelligence networks they help authorities anticipate and prevent communal riots or organized crime activities. भाई जैसे local intelligence है, it will analyze the local crime patterns and social media trends, and based on that it will anticipate and prevent communal riots and organized crimes. Local intelligence can also play a role in border security. So in border villages, local networks, including the shepherds, village heads, they play a vital role in reporting infiltration attempts and drone sightings to the border security forces. तो अब हमको लोकल इंटेलिजेंस का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आया कि लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स they can identify the insurgent hideouts in regions like Jammu Kashmir and left wing extremism affected areas जहाँ पे कि they can counter insurgency. Local intelligence networks it enables the predictive policing जहाँ पे they can analyze the local crime patterns and social media trends so that they can prevent communal riots and organized crimes. And local intelligence networks they also play a role in border security जहाँ पे जो local networks हैं like shepherds, village heads, they can report infiltration attempts and drone sightings to the border security forces. So if we talk about the key challenges with regards to local intelligence networks, so what are the key challenges with regards to local intelligence networks? The first key challenge is the coordination gaps. Because the idea ये है कि local intelligence networks it should communicate with the central agencies, but ये देखा गया है कि information it often gets siloed within local units
failing to reach central agencies like the NAT grid or the NIA in the time to prevent an attack. And this coordination gap is still a challenge with regards to local intelligence networks. क्योंकि मेन आइडिया तो यही है कि जो भी लोकल इंटेल्स है दैट शुड बी सेंट टू द सेंट्रल एजेंसीज इन अ टाइमली मैनर, बट इट हैज बीन सीन दैट इट इज साइलोड, जहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज के पास लाइक द नैट ग्रिड एनआईए इनके पास टाइमली इंटेल्स लोकल इंटेल्स पहुंच नहीं पाते हैं, एंड delayed or lost info can be very dangerous. It can lead to an attack. Technological lag. So many local intelligence units still rely on manual record keeping and lack modern tools for cyber patrolling or digital surveillance. तो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क का अगर हम चैलेंज की बात करें, चैलेंज इन द लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, सो टेक्नोलॉजी लैग इज स्टिल अ चैलेंज. क्योंकि अगर हम बात करें रिमोट एरियाज में लाइक बॉर्डर बॉर्डर के पास जो गांव हो गए या और कुछ रिमोट एरियाज हो गए, वहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर करके लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स को देते हैं. अब दे आर नॉट इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी, तो वो मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं. तो अभी भी भारत की अगर हम बात करें तो जो रिमोट एरियाज है लाइक जो विलेजेस हो गए, वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स उतनी अभी स्ट्रांग नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज, because they still rely on manual record keeping and they lack modern tools for cyber patrolling or digital surveillance. So, this technological lag is still a key challenge for local intelligence. Trust issues. अब लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट इशू एक बहुत बड़ा चैलेंज है. क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हम लोगों पे भरोसा करते हैं कि तुम हमको खबर पहुंचाओगे, खबरी. अब क्या उस पे हम कैसे भरोसा करें कि अगर उसने झूठ बोल दिया तो. सो दैट्स अ ट्रस्ट इश्यू. सो बिल्डिंग अ रिलायबल इंफॉर्मेंट नेटवर्क रिक्वायर्स years of trust building which can be fragile in conflict zones. तो रिलायबल इंफॉर्मेंट ढूंढना अपने आप में एक बड़ा काम है. सो ट्रस्ट इशू इज अ की चैलेंज. क्योंकि जो भाई अगर हम लोकल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो एजेंट होता है वो इंफॉर्मेंट्स हायर करता है ना, जो उनको खबर पहुंचाएंगे. तो इट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग. वो एजेंट ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता. एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन में तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है. लाइक अभी मणिपुर में इतना सारा दंगा हुआ, मणिपुर वहाँ पे इमरजेंसी लगी तो प्रोटेस्ट हम रोक नहीं पाए. तो जो भी लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क के जो एजेंट्स हैं वो भी अगर किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, इंफॉर्मेंट्स हायर कर रहे हैं, तो क्या व्हाट इज द श्योरिटी कि वो ऑनेस्ट होगा. वो भी हो सकता है कि रेडिकलाइज हो, भाई वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हो ना, उसकी भी अपनी आइडियोलॉजी होगी. सो ट्रस्ट इशू इज अ की चैलेंज. सो बिल्डिंग अ रिलायबल इंफॉर्मेंट नेटवर्क रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग which can be fragile in conflict zones. So these are the key challenges with regards to the local intelligence networks.